अपना कैमरा बंद कर। मैम स्टार्ट करें क्या? इसको खपकना क्या है यार। कल्पना मैम स्टार्ट करें क्या? वो 11 बजे मीटिंग एंड करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर। हाँ बिल्कुल स्टार्ट करो। A very good morning to one and all present here, all my dear student, all the faculty members of Computer Science and Engineering Department, and all the dear student who willing to know about CCNA certifications. First, before starting the event, I would like to invite HOD madam for best wishes, and after that a short video of SAGE group will be played and followed by Khushbu Qureshi, who is the today's resource person for CCNA, will chair the session. So HOD ma'am, Dr. Kalpana Rai, HOD Department of Computer Science and Engineering. Yes ma'am. Thank you Sneha madam. Thank you very much. Good morning to all of you and welcome Khushbu for this expert talk. We are very proud of you that we invited you and you can share your knowledge with our student. I welcome all the participant students in this SAGE talk, and I request all the students kindly inform and ask the other students, those who not joined till now, to join this session, because we organize this session for you people only, so that you can get the other knowledge or extra knowledge what's going on in outside in the industry and at other area. Okay, as all of us know, this is the very golden period is going on, and this is a very golden period for all of you. Yeah? So inform you once again. I thanks Sneha for organizing this session, and welcome Khushbu. You can start your session. So thank you so much ma'am for your best wishes. Now I am playing a short video that will show you the potential of the SAGE group in different verticals.
And after that, Khushbu ma'am will share the knowledge about CCNA. So after that, I would like to invite Khushbu to share her PPT and share valuable knowledge about CCNA. This topic is very, very much helpful for the 6th semester, especially because you have one subject that is computer network, and computer network subject contain all the important element that will helpful in order to clear the CCNA certifications. And parallelly, you can do the CCNA certifications by studying the computer network subject. So Khushbu, you may share your PPT. Sure, ma'am. First of all, thank you. Thank you to all, and very good morning. Myself Khushbu Qureshi, and I hail from Bhopal, Madhya Pradesh only. I have done my BTech from Trinity Institute, and now I am pursuing my MTech from Sagar Institute as well. And thank you so much, Kalpana ma'am and Sneha ma'am, to giving this opportunity to me. Now I'm going to share the PPT. Yes, you may share now.
Khushbu, your PPT is not visible. Yes, ma'am. Just checking this. Just checking this. Now it is visible. No, Khushbu. Just give me one moment, please. PPT visible. Khushbu, you may simply click share screen. A green upward arrow is there. Okay, ma'am. Khushbu, you may WhatsApp the PPT to me also. I will also share it. If you are not able to share the PPT, you may simply WhatsApp me and you may start the session. Sure, ma'am. Khushbu, your PPT is not visible. You may proceed with the without PPT if it is possible. Khushbu? Yes, sure, ma'am. You may proceed without PPT. And so here I'm giving you the introduction. Let's start about the CCNA. So basically CCNA stands for Cisco Certified Network Associate, and it gives the information about networking, its type and its application. It's a popular certification which is developed by Cisco.
And guys, it is very useful to all of us, like the graduate students. ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाएं या वेब डेवलपमेंट में जाएं या फिर टेस्टिंग डिपार्टमेंट में जाएं. हम अपने लिए एक नेटवर्किंग डिपार्टमेंट, नेटवर्किंग फील्ड में भी अपने लिए जो है एक आईटी सेक्टर को चूज कर सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है. CCNA का जो ट्रेनिंग पीरियड रहता है ये 2 to 3 months का रहता है ऑलमोस्ट. और उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हमें कुछ टाइम मिलता है ताकि हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सके. Khushbu, if you can send the PPT to me on WhatsApp, then I will share from my end. Okay, ma'am. Just trying. आपको करने से क्या होगा? Khushbu, you may on your video if it is possible, so that audience will be connected through your. Okay, ma'am. Your screen is sharing now. Now it is shared. Khushbu, now it is shared. Okay. Please proceed. Yeah, am I audible now? Yes, yes, you are audible and shared as well. Thank you. Okay, ma'am. Thank you so much. So, हम बेसिकली स्टार्ट होता है नेटवर्किंग से, जो हम अपने बीटेक में पढ़ते हैं. नेटवर्किंग में हमने यही पढ़ा रहता है, लैन मैन वैन नेटवर्क्स प्लस जो राउटिंग स्विचिंग. CCNA में जो है बेसिकली हम जो है राउटिंग एंड स्विचिंग पे काम करते हैं. इसको कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, आईपी एड्रेस को डिज़ाइन करते हैं, असाइन करते हैं, और OSI मॉडल के ऊपर पूरा काम होता है इसमें. और इजी है, इतना टफ नहीं है जैसे लग रहा है आपको सुनने में, बट जो है थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट लाना होगा इसके लिए. तो ये वैसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. जब हम ट्रेनिंग टाइम पे थे तो हमें लाइक केबलिंग भी सिखाई थी, उसकी कलर कोडिंग सिखाई थी, तो बहुत अच्छा लगता था, वो सब बहुत इंटरेस्टिंग था. तो और फिर हमारे जो सर थे उन्होंने सर्टिफिकेशन के बारे में भी बताया. तो लाइक इसका सर्टिफिकेशन जो होता है वो आपको आप इंटरनेशनली इसका लाइक इंटरनेशनली आपको एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिल रहा है, जिससे आप कहीं भी ग्लोबली जॉब कर सकते हैं. आपके लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज रहेगी. देन आपको जो है इसका टाइम पीरियड रहता है लाइक 6 months. 6 months के अंदर आप ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर सकते हैं प्लस प्रिपेयरिंग कर सकते हैं अपने एग्जाम की. और इसका कॉस्ट मैं बताती हूँ आपको, $300 रहता है, समथिंग अराउंड 25,000 इन इंडियन रुपीज सर्टिफिकेशन का. एंड एज नेटवर्किंग तो हम सबको ही पता है, लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, एंड मैन जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, एंड वैन जो है वाइड एरिया नेटवर्क होता है. इस नेटवर्क पे हम कैसे क्या डिज़ाइन कर रहे हैं, आईपी एड्रेस को कैसे असाइन कर रहे हैं, ये सब जो है हमें CCNA में पढ़ना रहता है. प्लस राउटिंग को कॉन्फ़िगर करना है एंड स्विचिंग रहती है उसमें. मैं आपको बता देती हूँ, सब नेटिंग होती है. लाइक इतने सारे नेटवर्क्स हम कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके लिए हम सब नेटिंग करते हैं, नेटवर्क को डिवाइड करते हैं. इसमें क्लासेस होती है, इस तरह हम इसे डिवाइड करते हैं. इसके लिए हमें इसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना रहता है.
देन फिर राउटिंग आती है। राउटिंग स्टार्ट करने से पहले जो है हमको अपना पूरा नेटवर्किंग वाला पार्ट जो है वो पूरा क्लियर करना रहता है। उसके बाद राउटिंग स्टार्ट होती है। फिर राउटिंग में हम पढ़ते हैं कि राउटर्स के सीरीज क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उसका काम क्या होता है, और उसे कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। टेलनेट पढ़ते हैं। फिर इसके बहुत सारे कमांड्स रहते हैं जो कि इजी रहते हैं, लाइक हम उसे समझ सकते हैं इजीली। और राउटर को कैसे लॉगिन करना है, उसका पूरा राउटर क्या टाइप्स क्या है, डायनेमिक राउटर होते हैं, स्टैटिक राउटर होते हैं, ये सब हमें उसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन पढ़नी रहती है। और ये राउटर के जो है कुछ प्रोटोकॉल्स रहते हैं, उस प्रोटोकॉल्स पे हमें जो है वो कॉन्फ़िगरेशन करनी रहती है हर एक प्रोटोकॉल पे, और हर एक प्रोटोकॉल अलग अलग वर्क करता है। ACL जो होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होता है, ये परमिट करता है किसी भी नेटवर्क को। देन हम स्विचिंग पढ़ते हैं, उसमें वर्चुअल लैन और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ये सब जो है ये स्विचिंग में आता है। IP एड्रेसेस रहते हैं, उसकी क्लासेस रहती है, उन्हें कैसे असाइन करना है, कैसे डिज़ाइन करना है। लाइक कुछ सिनेरियोज रहते हैं हमारे पास, और उसको लेके हम पूरा डिज़ाइन करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, और क्वेश्चंस मैं बताती हूँ मैम। लाइक जो क्वेश्चंस हैं वो इस टाइप से आते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं सबनेटिंग से रिलेटेड। देन जो राउटिंग के प्रोटोकॉल से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसका हमें आउटपुट बताना है उन्हें। ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ के इसका आउटपुट, इसका IP एड्रेस निकाल के हमें पूरा समझाना है। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए हम ऑलरेडी जो है प्रिपरेशन कर लेते हैं 6 मंथ्स के अंदर, तो जो है हम इजीली इसे क्रैक कर सकते हैं। कितना ज़्यादा टफ नहीं है, बट थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है स्टार्टिंग से। Am I audible? Yes, yes. Yes, madam. Yes. Yeah, इसका कॉस्ट है 25,000 प्लस ट्रेनिंग का जो कॉस्ट रहता है वो 10 to 15,000 रहता है। तो ऑलमोस्ट मेरा चार्जेस तो हाई लेवल पे चला गया था, 50,000 अराउंड मेरा ये सर्टिफिकेशन मुझे क्लियर हुआ है। 50,000 तक मेरा चार्जेस गया है, बट अभी शायद इसका चार्जेस जो है कुछ कम हुआ है। एंड जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो इस फील्ड में जा सकते हैं। एंड काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग है ये, तो मैं सबको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आप बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज में भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक मैं अभी M.Tech अपना क्लियर करने के बाद मैं भी फिर लाइक सिस्को में भी हम जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आप CC आने के बाद CCNP भी कर सकते हैं। CCNP जो होता है वो थोड़ा एडवांस लेवल पे होता है, और CCNA बेसिक रहता है, CCNP एडवांस लेवल पे रहता है। देन CCIE रहता है जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे रहता है। एंड अगर हम वो क्लियर करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा हाईएस्ट अचीवमेंट क्लियर कर रहे हैं। ये आपको बेसिक जो नेटवर्किंग है वो क्लियर रखनी है, दैट्स इट।
उसके बाद जो है आपको बेसिकली बस ये राउटिंग एंड स्विचिंग पढ़ना है और इसको कॉन्फ़िगरेशन को समझना है कि कैसे क्या लॉगिन करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे नेटवर्क को असाइन करना है, कैसे डिवाइड करना है, और पर्टिकुलर कुछ सिनेरियोज रहते हैं उसके ऊपर हम कैसे वर्क करते हैं इन फ्यूचर। इसके जो एग्जाम है वो ऑफलाइन भी होता है ऑनलाइन भी होता है। लाइक ऑनलाइन जो है आप अपने घर पे बैठ के भी दे सकते हैं, और ऑफलाइन जो है आप एग्जाम सेंटर आपको अलॉट किया जाएगा। और इसका एक ये भी बेनिफिट है कि आप अपने अकॉर्डिंग डेट चूज कर सकते हैं। आपको जब भी एग्जाम देना हो आप खुद शेड्यूल कर सकते हैं। आपको क्या है, सिस्को में एक प्रोफाइल बनानी है अपनी, उसके बाद आपको डेट चूज करनी है, देन आपको उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन के लिए पे करना है एग्जाम के लिए। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग आप कैंसिल भी कर सकते हैं एग्जाम को, बट उसके लिए 12 आवर्स पहले आपको जो है कैंसिलेशन के लिए रिक्वेस्ट करना है। और ये इसका जो सॉफ्टवेयर होता है जो कि हम यूज़ करते हैं ट्रेनिंग टाइम में, वो सिस्को पैकेट ट्रेसर रहता है। उस पर जो है हम पूरा सीखते हैं ये नेटवर्किंग, एंड देन फिर हमें एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए कुछ असाइनमेंट्स फाइल्स सब मिलती है ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से। देन उसे हम लाइक जैसे हम RGPV एग्ज़ाम देते हैं अपना, हम पुराने क्वेश्चंस देते हैं, वैसे हम इसमें भी है जो पुराने पहले जो आए हैं CCNA एग्जाम में क्वेश्चंस वो सॉल्व करते हैं। एंड देन वैसे ही पूरा कॉन्सेप्ट तो वही है, बस ये है कि थोड़ा सा टफ है, बट अगर हमारे नेटवर्किंग क्लियर है, हमारा राउटिंग स्विचिंग क्लियर है, बेसिक क्लियर है अगर हमारा, तो हम इसे अचीव कर सकते हैं। गाइस किसी को कोई क्वेश्चन करना हो तो कोई पूछ सकता है मुझसे। नो मैम। ओके जैसे कि मैं राउटिंग की बात कर रही हूँ, राउटर जो होता है एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है, इंटर नेटवर्किंग डिवाइस, लेयर 3 पे ये काम करता है। तो अगर राउटर पे कोई काम कर रहा है तो वो कोई एक अच्छा बंदा होना चाहिए, लाइक जिसने CCNA पढ़ा हो या क्लियर किया हो, क्योंकि राउटर जो है बहुत महंगा डिवाइस रहता है। 50,000 से तो वो स्टार्ट ही होता है, बट हम उसमें कुछ गड़बड़ कर देंगे तो फिर वो नहीं होगा ना एक्सेप्टेबल। दैट्स वाई ये जो है CCNA, इसको इसको मतलब अगर आप इसका सर्टिफिकेशन क्लियर करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है, और आप बहुत मतलब इंडिया तो क्या, इंडिया से बाहर भी आप अच्छे जॉब जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए रहती है। कुछ भी इससे रिलेटेड अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं मुझसे। एनीवन? स्नेहा मैम, अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना हो तो पूछ सकते हैं। मैं ऑडिबल हूँ?
ओके, तो इससे रिलेटेड आपको कुछ नहीं पूछना मुझसे? लाइक कैसा रहता है ना, हम बीटेक कर रहे हैं अभी तो अभी तो हम जावा सीख रहे हैं, C++, पाइथन, ये सब सीख रहे हैं, देन PHP। बट होता है कभी कभी हमें कोडिंग समझ नहीं आती है, चाहे हम कितना भी ट्राई कर लें। तो फिर हम सोचते हैं बट एज अ कंप्यूटर इंजीनियर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कि अगर हमें कोडिंग समझ नहीं आ रही तो हम कहाँ जाए, क्या करें। ऐसा नहीं है जरूरी नहीं है कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही जाएं, हमारे लिए बहुत सारी फील्ड्स खुली हुई है। तो बीटेक वाले भी कर सकते हैं इसे, BSc वाले भी कर सकते हैं। आप लोग के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप इस सेक्टर को, इस फील्ड को चूज कर सकते हैं। मैंने भोपाल से ही किया था यहाँ पे ट्रेनिंग, MP नगर भोपाल से। ट्रेनिंग जो था 2 to 3 months चला था, देन उसके बाद हमने एग्जाम के लिए जो है एग्जाम फॉर्म फिल किया, देन उसके 3 months तक हमने प्रिपरेशन की, पर आफ्टर 6 months एग्जाम दिए। गाइस, किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? मैम, राउटिंग मतलब क्या है एक्चुअली में, इसका यूज क्या होता है? क्या पूछ रहे हैं, मुझे क्लियर नहीं हुआ। राउटिंग मींस? राउटिंग, ओके। राउटर एक इंटरनेटवर्किंग डिवाइस होता है, जो कि जैसे कि नेटवर्किंग में भी आपने पढ़ा होगा राउटर। राउटर का काम क्या है, वो जो नेटवर्क के पैकेट्स रहते हैं उसको फॉरवर्ड करता है। तो इसमें हमें कॉन्फ़िगरेशन सीखनी रहती है कि हम राउटर को कैसे लॉगिन करेंगे, उसके पासवर्ड्स को कैसे सेट करेंगे, टेलनेट सेशन को कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो राउटर एक बहुत इम्पोर्टेंट डिवाइस रहता है। और जो राउटिंग इसकी प्रोसेस रहती है जिसमें ये एक बेस्ट पाथ को चूज करता है, लाइक नेटवर्क को फॉरवर्ड करने के लिए। तो ये इसकी बहुत सारी सीरीज रहती है, और हमें, जैसे मैंने CCNA किया है, तो मैं सिस्को के राउटर पे काम करूंगी। और भी राउटर्स रहते हैं और इसकी रेंजेस जो रहती है वो ऑलमोस्ट 50,000 से स्टार्ट होता है, कोई भी राउटर देख लेंगे। तो इसकी जो है हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी रहती है, और मेन काम हमें यही रहता है इसमें। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। और किसी की कोई क्वेरी है इसको लेके, लाइक कैसे कैसे ज्वाइन करना है, कोर्स में क्या होगा, से रिलेटेड कुछ भी आप पूछ सकते हैं मुझसे। मैम, जैसे आपने बोला सिस्को राउटर, तो उसमें कुछ मॉडल भी तो होते हैं ना? यहाँ के मॉडल्स रहते हैं, बहुत सारी इसकी सीरीज रहती है, बहुत हाँ, सारे तो features उनका रहते हैं। उनका क्या वो रहता है काम, मॉडल्स का? राउटिंग नेटवर्क जो है उसको नेटवर्क फॉरवर्ड करता है ये, और हमारा जो काम रहता है इस पे वो ये रहता है कि हमने जो कॉन्फ़िगरेशन सीखी है ना, तो राउटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करके हम इसे कॉन्फ़िगर करते हैं, और पूरा जो नेटवर्किंग डिपार्टमेंट है उसे चेक करते हैं कहीं कोई नेटवर्क बंद तो नहीं हो गया। ये काम हमारा रहता है। ठीक है मुस्कान? यस मैम, ठीक। हम्म। कौन से सेमेस्टर में आप? 6th सेमेस्टर। ओके, कूल। आप लोगों ने नेटवर्किंग तो पढ़ा ही होगा, अभी शायद 6th सेम में ही रहता है वो। मैम अभी पता नहीं है।
कौन सा करेक्ट? कंप्यूटर नेटवर्किंग, ओके। ओएसआई मॉडल्स रहते हैं। मैम इसकी कुछ कमांड भी होती होंगी? जी, इसके कमांड्स रहते हैं बहुत सारे अलग अलग। जैसे पासवर्ड के लिए अलग, वेरिफिकेशन के लिए अलग, हर चीज की अलग कमांड रहते हैं। बेसिक सबका सेम रहता है, बस थोड़ा सा चेंजेस रहता है। वो हम मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल याद नहीं रह सकते। इसके पोर्ट्स रहते हैं, बस वो पोर्ट्स के नंबर थोड़ा याद करने पड़ते हैं। बाकी सब चीज जो है इजी है, आप समझ सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसा कुछ टफ नहीं है। बट हाँ, एग्जाम जो है वो इंटरनेशनल एग्जाम रहता है, बस वो इसलिए टफ रहता है। तो उसकी प्रिपरेशन हमें बहुत अच्छे से करनी होती है, क्योंकि आपको 85 तक के अचीव करना रहता है इसमें। अगर 85 से आपका 84 भी आया तो फिर वो रह जाएगा, क्लियर नहीं हो पाएगा। मैम इसका एग्जाम कोई भी दे सकता है? हाँ कोई भी, लाइक हम कंप्यूटर साइंस फील्ड से है ना, तो कोई भी ग्रेजुएट दे सकता है एग्जाम। बट इसके लिए पहले हमें ट्रेनिंग लेना है, देन उसके बाद हम एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। और एग्जाम जो है ऐसा है, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। मैंने जो दिया था वो ऑनलाइन दिया था मैंने। ऑफलाइन भी दे सकते हैं। ऑफलाइन में जो है आपको एग्जाम सेंटर अलॉट किए जाएंगे। देन आपको जो है आप अपने अकॉर्डिंग डेट शेड्यूल कर सकते हैं इसमें। और जिस दिन आप डेट शेड्यूल करेंगे उसी दिन आपको पेमेंट करना रहता है। और फिर आप चाहें तो, जैसे आपको लग रहा है आज सेकंड है और आपने टेंथ को जो है एग्जाम के लिए शेड्यूल किया है, तो आपको लग रहा है नहीं मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, टेंथ को नहीं दे पाऊंगी, तो आप उसे कैंसिल करके ट्वेल्थ या अपने अकॉर्डिंग किसी भी डेट पे आप जो है उसको शेड्यूल करवा सकते हैं। ये इसका बेनिफिट रहता है इस एग्जाम का, लाइक ये हमारे अकॉर्डिंग है। मैम ऑफलाइन भी ऐसा कर सकते हैं कि हाँ, ऑनलाइन में ही हो सकता है? हाँ, मोड है इसमें। अभी ऑनलाइन अभी हुआ है, क्योंकि अभी जो कोविड चल रहा था इस वजह से सेंटर्स बंद हो गए थे ना। बट जिन लोगों ने एग्जाम के लिए फी पे कर दी थी उनके एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो गए थे, इस वजह से फिर ऑनलाइन मोड किया सिस्को ने, एंड देन फिर एग्जाम्स हुए सबके। मेरा भी एग्जाम ऑनलाइन मोड पे ही हुआ था। इसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं, इसका एग्जाम थोड़ा सा अलग रहता है। लाइक हम इसमें टाइमर तो रहता है सारे एग्जाम्स में, बट जो क्वेश्चन अपेयर होता है ना, हम उससे बहुत अच्छे से पढ़ना रहता है, क्योंकि हम उसे बैक नहीं कर सकते बाद में। हम एमसीक्यूज रहते हैं तो हमें उसे टिक करना है और फिर नेक्स्ट कर देना है। बट अगर हम श्योर नहीं है तो उसके लिए भी एक ऑप्शन रहता है उसमें, बट हम इसमें बैक नहीं कर सकते। एक बार अगर हमने आंसर चूज कर लिया तो फिर वो हो जाएगा। जैसा 85 तक के आपको लाना है कैसे भी, तभी वो क्लियर हो पाएगा, नहीं तो फिर से आपको एग्जाम फीस जो है सबमिट करनी है, फिर आपको फिर से प्रिपरेशन करनी है, देन एग्जाम देना है, ऐसा हो जाएगा। मैम इसकी एग्जाम की फीस में मिनिमम कितनी है? हाँ, कितनी हो एग्जाम सकती है? फीस क्या है मुस्कान, मैंने बताई थी कि ये इंटरनेशनल एग्जाम होता है तो उसकी फीस जो है डॉलर में रहती है। $300 है, आप चेक कर सकते हैं। $300 रहती है, 23,000 इंडियन रुपीस। और मेरी जो थी, मेरे टाइम पे जो मैंने दिया था, 1 साल पहले दिया था मैंने, तो 30,000 फीस लगी थी मेरी एग्जाम की। और 10 to 15,000 ट्रेनिंग की फीस लगी थी। बट अभी जो है चार्जेस जो है कम हो गए। इसके बाद सीसीएनए के बाद भी हम सीसीएनपी भी कर सकते हैं इसका एडवांस लेवल पे। फिर सीसीएनपी के बाद सीसीआई कर सकते हैं, सीसीआई वो और ज़्यादा हाई लेवल पे रहता है। बट इससे भी हमें बहुत प्रॉफिट मिल रहा है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, तो हम जा सकते हैं इस फील्ड में। और किसी को कोई क्वेश्चन? ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू।
गाइस किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। जैसे मुस्कान की क्वेरी थी, आप लोग भी पूछ सकते हैं। एनीवन? लोग चैट में भी लिख सकते हैं अपना क्वेरी, मैं इससे देख के आपको बता दूंगी इफ यू वांट। गाइस किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? शायद नहीं है। कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हैं मुझसे। खुशबू मैम, हेलो जी पूछिए। मैम, यदि स्टूडेंट की क्वेरी ना हो तो वी में एंड इट if you want. Student, if you have any query, then you may ask. I think no query. Okay, Khushbu ma'am, you may give the LinkedIn ID so that a student may contact. ओके, मैं वो शेयर कर दूंगी। हाँ हाँ, शेयर आप कर दीजिए।
So on behalf of whole computer science and engineering team of SIRT Excellence Bhopal, I would like to give vote of thanks to my dear student Khushbu Qureshi. She is one of the best student of MTech batch. So student, be connected with your senior like Khushbu. Thank you so much. All the people be in the Sage Talk. Thank you so much. So I am ending this meeting. Thank you. Thank you so much to all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.
मैं एंड कर दूं?